Hello students, in this lecture we discuss the topic of principles of management. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ने कि प्रिंसिपल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਨਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਸਾਈਟਸ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ
मीटिंग चेंजिस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स सानू गाइडलाइनस प्रोवाइड करते हैं ताकि असी टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट दी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकीए, अपने बिजनेस को डिवेलप कर सकीए, कंपीटिशन के अकॉर्डिंगली असी अपनिया जो भी सिचुएशनस ने उन्होंने चेंज करिए, अपनी इन्वायरमेंट चेंज करिए, अपनी वर्किंग कंडीशनस चेंज करिए, तो नाल ही नाल असी अपनी सोशल रिस्पोंसिबिलिटीज़ भी फुल करिए क्योंकि साडी सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारिया रिस्पोंसिबिलिटीज़ ने। अच्छी क्वालिटी का माल असी अपने प्रोडक्ट है जिहड़ा असी अपने कस्टमर्स नूं रीजनेबल प्राइसिस के उपर प्रोवाइड करवाइए, तो नाल ही नाल साडे प्रोडक्ट के नाल किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल इफैक्ट है जिहड़ा सोसाइटी नूं नहीं ना होवे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्रिंसीपल्स ने सानू टाइम टू टाइम इनकरेज करते हैं कि असी टाइम टू टाइम रिसर्च करिए, एजुकेशन करिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दईए अपने वर्कर्स नूं ताकि असी एक पर्टिकुलर वे दे नाल अपने बिजनेस के जो भी गोल्स ने उन्होंने अचीव कर सकें। ठीक है, इसी बेटा साडे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नैक्सट है साडे फंडामेंटल प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साडे ग्रेट मैनेजमेंट ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ इंडस्ट्रीलिस्ट ਸੀਗੇ फ्रांस ਦੇ, जिन्हों असी कहने हैनरी फ्यूअल के नाम नाल फेमस ने। उन्होंने सानू कुछ प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिते ने जिन्हों के अकॉर्डिंगली असी की है बिजनेस नूं असी उन्होंने फॉलो करते हैं अपने बिजनेस के विच, ते उन्हों के अकॉर्डिंगली असी अपने काम करते हैं। ठीक है, पहला मतलब ये 14 प्रिंसीपल्स ने जिन्होंने असी कहते हैं हैनरी फ्यूअल्स प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फस्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वर्क। हैनरी फ्यूअल के अकॉर्डिंगली फस्ट प्रिंसीपल ऑफ मैनेजमेंट की कहता है कि जिहड़ा काम है उन्होंने कुछ ना कुछ पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। हर एक परसनस नूं कुछ ना कुछ काम उहदी अबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उहदी टेस्ट के अकॉर्डिंगली वंड के देना चाहिए ताकि असी अपने गोल्स नूं अचीव कर सके। इट मीनस कि जेकर असी एक बंदे के उपर ही सारा वजन पा देंगे दैन असी अपने गोल्स नूं अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जिहड़ा परसन, जिहड़ा इंपलॉय जिहड़े काम नूं करन दे विच सफिशेंट है, टैलेंटड है, अबिलिटी है उहदे विच उस काम नूं करन दी, असीं उस बंदे नूं वो काम करन नूं दईए ताकि वो मोर एफिशेंटली ते मोर इफैक्टिवली उस काम नूं कर सके। ठीक है, सैकेंडली अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी। हरेक परसन नूं जेकर रिस्पोंसिबिलिटी मिली है तो नाल ही नाल अथॉरिटी भी होनी चाहिए है। मतलब कि जेकर साडी जिम्मेवारी है किसी काम नूं करन दी तां साडे कोल अधिकार भी होने चाहिए ने उस काम नूं करन दे। ठीक है, तां ही असीं अपने काम नूं वधिया तरीके दे नाल कर सकते हैं। थर्डली डिसिपलिन होना चाहिए बिजनेस के विच। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स ने, इंपलॉयज़ ने वो सुपीरियर तो लैके सबॉर्डीनेट्स तक सही तरीके दे नाल उन्होंने फॉलो करना चाहिए ताकि असी अपने बिजनेस के गोल्स नूं सक्सैसफुली अचीव कर सकीए। नैक्सट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंगली की है हर एक इंडिविजुअल इंपलॉय नूं सिर्फ एक ही सुपीरियर तो ऑर्डर मिलना चाहिए एक ही टाइम के उपर। इट मीनस देखो एक डायग्राम के थ्रू उन्हें समझाया तुहानूं कि जेकर एक बंदा एम है वो एम है जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डीनेट्स नूं काम दे रहा 3 परसनस। ठीक है, एक ही है यूनिटी ऑफ कमांड दी। ठीक है, राइट अप्रोच है। बट जेकर यही बंदा एक ने इन्हूं भी देता, एक 2 परसनस ने, हुण 2 सुपीरियर ने M1 एंड M2, 3 की ने उन्होंने सबॉर्डीनेट्स ने। M1 है जिहड़ा वो भी S1 नूं काम दे रहा है, M2 है वो भी दे रहा है, M1 भी S2 नूं काम दे रहा है वो भी। इट मीनस अगर मतलब एक सबॉर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर से कमांड या ऑर्डर मिलेगी दैन दे कैन नॉट वर्क इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट मीन्स वो अपने काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हमारी ये अप्रोच है, ये राइट है कि एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से काम मिलना चाहिए तो वो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल सेज दैट one head and one plan for a group of the activity having the same objectives। it means कि अगर हमारे 2 मतलब डिवीज़न्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स सेम हैं देन देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 प्लान फॉर दीज एक्टिविटीज़। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसने समझाया कि अगर आप 2 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, स्कूटर्स एंड कार्स, 2 डिवीज़न हैं आपके, लेकिन आपकी मार्केट की और प्रॉब्लम्स हैं उसको आप एक ही हेड के अंडर रख सकते हो ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। नेक्स्ट, subordinates of the individual interest to general interest। According to this principle, the interest of organization should take priority over the interest of the any individual employee।
इट मीन्स कि हमारे बिजनेस के जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमें उसी प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि अपने वर्कर्स या अपने किसी भी और इंडिविजुअल पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। प्रिंसिपल सेज दैट हमें अपने वर्कर्स को रीज़नेबल जो रेम्यूनरेशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो अपने काम के प्रति मोटिवेट हो। ये नहीं है कि हम काम तो उनसे डबल ले रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट उन्हें हम उतनी सैलरी प्रोवाइड करें कि वो अपने जो भी नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस के गोल्स के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक ही मतलब हेड से, सुपीरियर से जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो होंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगी। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि एक ही पर्सन है, जो एक ही अथॉरिटी है, वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करोगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप अपने वर्कर्स में, अपने सुबॉर्डिनेट्स में अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि किस हिसाब से वो अपना काम है वो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है? ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन होती है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो किस फ्लो में आएगी ऊपर से नीचे तक। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फेलर्स क्या कहता है, फेलर्स की ओपिनियन क्या है कि हमें स्ट्रिक्ट मैनर से उसे फॉलो करना चाहिए टॉप टू बॉटम। ठीक है। ताकि हम अपने बिजनेस के रूल्स को, अपने बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसीजर बनाया गया है कि जैसे ए से इंफॉर्मेशन बी को, बी से सी को, सी को से डी के, इसी चेन में ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में जब इंफॉर्मेशन ऐसे पास की जाती है एक ही लेवल के पर्सन के दूसरे लेवल के पर्सन से, देन दैट इज़ नाउन एज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कब इस्टेब्लिश होता है? जब एम्प्लॉयज़ ऑफ इक्वल और सेम लेवल एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं। जहाँ पर देखो जिस पॉइंट पर एफ है उसी पॉइंट पर पी है, उसी लेवल पर का एम्प्लॉय पी है, तो वो जब वो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देन दैट इज़ नाउन एज गैंग प्लैंक। नाउ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट द राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। जैसे कि मटेरियल ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, कि हर एक चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। हर एक पर्सन को भी राइट प्लेस पर रखना चाहिए और उसके द्वारा किए जाने वाले काम को भी राइट प्लेस पर ही रखना चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सकें। नेक्स्ट, इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, एवरी मैनेजर शुड ट्रीट देयर subordinates as possible as to develop the feelings of the dedication of their work. इट मीन्स कि हर वर्कर को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसने समझाया कि एक लेबर कंप्लीट करती है 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स इन अ डे, अनदर लेबर who happen to be relative to the superior complete 8 units, but both are get equal remuneration. That violate the principle of equity. इट मीन्स कि एक पर्सन तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वन डे में, लेकिन दूसरा 8 यूनिट्स, लेकिन दोनों को सेम रेमुनेशन मिल रहा है। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जो पर्सन ज़्यादा बेटरली काम कर रहा है उसे हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे अच्छा रेमुनेशन देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन्स मीन्स हमारे जो बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमें कंटिन्यूसली काम करते रहने देना चाहिए। ये नहीं है कि आप लेबर को टाइम टू टाइम चेंज करें, आपकी लेबर बिज़नेस में स्टेबल नहीं है, जिससे क्या होगा, आपके बिज़नेस की इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। अगर आपके वर्कर्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, देन दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली। इंटीटेटिव, इट मीन्स आपको टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, नए नए प्लान एग्जीक्यूट करने चाहिए ताकि वो मोटिवेट हों, इंटीग्रेट हों, उनकी एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग पावर इंक्रीज़ हो, जिससे क्या होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, वो अपने प्लान्स को अच्छी वे से एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ फेलर फ्यूल इज़ स्पाइट डी क्रॉप्स।
According to this principle, a manager should continuously make effective develop a team spirit among their subordinates. एक जो मैनेजर है उसको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि उनके सबॉर्डिनेट्स में, उनके एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट हो, वो एक टीम में काम करें, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम अगर काम कर रहे हैं तो हम एक टीम में काम करेंगे तो हम अपने मेन गोल प्रॉफिट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि एक से भले दो, अगर हम मिलकर काम करेंगे देन वी कैन अचीव अवर गोल्स मोर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो जो हमारा हेड है, हमारा जो मैनेजर है, उसकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर्स में टीम स्पिरिट को मोटिवेट करे। तो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।